Hello students, today we are going to start a new topic, that is e-banking. So what is e-banking? It is the full form of e-banking is electronic banking. So electronic banking means which we are doing with the help of electronic devices. Okay, so let us discuss first about the meaning of electronic banking. Electronic banking means banking transactions carried out with the help of computer system, which we are doing with the help of electronic devices such as computer system. Any user having a PC and a browser can access the bank website and avail of banking services. The users, those who are using the bank facilities, those who are having PC or any kind of a browser, web browser, they can go to the bank websites and they can use the opportunities, they can use the services given by the bank. Electronic banking is banking over the internet. So the banking which we are doing with the help of internet, that is electronic banking. Now come to the several features of e-banking. First feature of e-banking is there is no face-to-face contact in person between the bank and the client. See what is electronic banking? Electronic banking होता है कि हम बैंक की ट्रांजेक्शन करते हैं, जो क्लाइंट होता है वो बैंक की ट्रांजेक्शन करता है विदाउट गोइंग टू द बैंक. बैंक की ट्रांजेक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, विद द हेल्प ऑफ वाइल सिटिंग एट होम, घर पर बैठ के ही इंटरनेट के थ्रू ही कैन डू सेवरल ट्रांजेक्शन्स ओके ऑफ हिज अकाउंट. सो दैट इज़ ई बैंकिंग. तो जो उसका फर्स्ट फीचर होता है, द मेन फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन पर्सन. बैंक जब कस्टमर बैंक ही नहीं जाएगा, देन देयर इज़ नो फेस टू that the main feature is that you can do, the client can do all the transaction while sitting at home. Then second is both the bank and the client need computer or mobile. Whenever you are doing the transaction, तो बैंक में भी उस ट्रांजेक्शन को रिसीव करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम चाहिए. एंड व्हेन यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन, देन द क्लाइंट ऑल्सो नीडेड कंप्यूटर या मोबाइल. जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको कंप्यूटर या मोबाइल की ज़रूरत है. देन द क्लाइंट हैज़ टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक. अगर कोई क्लाइंट है उसको ई बैंकिंग मीन्स अगर उसको बैंक की इंटरनेट वाली जो सर्विसेज होती हैं, अगर उसको वो सर्विसेज नीडेड है, रिक्वायर्ड है, तो वो ई बैंकिंग ऑप्शन पहले जाके बैंक में साइन करेगा दैट आई वांट ई बैंकिंग, इंटरनेट ऑप्शन मुझे नीड है. एंड देन ही विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, ही विल गेट दैट ई बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम द बैंक. Then fourth is the bank staff and the client must understand e-banking technology. Then obviously now in the changing scenario, अब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है to use digital payments, to use digital banking. No need to go to the bank for especially for the things which we can do online. Yes, so उसके लिए क्या है, जो बैंक स्टाफ है और जो क्लाइंट है, दोनों के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज दिस टेक्नोलॉजी मीन और हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी. सो it is required for both the bank staff as well as for the client to understand e-banking technology. So these are some of the features of e-banking, that there is no face to face contact. Secondly, computer or mobile is required for both the client and the bank staff. Then third, the client has to give the bank that he wanted e-banking services. Okay. Then fourth is that they both should understand the e-banking technology, that how to use it. Now come to the several advantages of e-banking. E-banking nowadays it is too much popular and there are several advantages of it. First advantage, it is, see, e-banking offers the following benefits to customer. Now how it is useful for the customer? A customer get 24 hours and 365 days a year services. Whenever you want, with the help of e-banking आप लोग क्लाइंट और कस्टमर जो है संडे में भी ट्रांजेक्शन कर सकता है. सो इट इज़ द फैसिलिटी इज़ गिवन 24 hours and 365 days a year services. So it is 24 hour, 24/7 we can say. Then next is customer can make the permitted transactions from residence or office, and even while traveling they need not go to the
कोई भी आपको ट्रांजेक्शन करनी है देन ज़रूरी नहीं है कस्टमर्स के लिए कि वो बैंक जाए, वो अपने रेजिडेंस से, घर से, अपने ऑफिस से, एंड इवन इफ़ ही इज़ ट्रैवलिंग टू समवेयर ही कैन डू द रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन्स. कोई ट्रांजेक्शन्स हैं ही कैन डू फ्रॉम एनीवेयर. Then third, recording of each and every transaction inculcates a sense of financial discipline. सी व्हेन यू आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वो आपके पास रिकॉर्ड रहता है इन योर ऑनलाइन स्टेटमेंट. ओके, सो वट एवर द ट्रांजेक्शन, इवन इफ़ यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ ₹1 का भी अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, देयर विल बी अ रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांजेक्शन विद यू एज वेल एज विद द बैंक. सो जब आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन. ओके, कि एक कस्टमर होता है उसको भी एक डिसिप्लिन रहता है दैट दिस मच ट्रांजेक्शन आई हैव डन, उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है. एंड मीन्स एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कैन नॉट टेक प्लेस. एक डिसिप्लिन रहता है वट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग, वट एवर द ट्रांजेक्शन्स यू आर डूइंग. Then next, customer feel a sense of security. They do not face the risk of carrying cash. If you want to give someone, let's say if you want to give someone 2 lakh rupees, 2 lakh रुपीज़ पहले क्या होता था कि बैंक जाते थे, डिपॉजिट करते थे उसके अकाउंट में, है ना. सो देयर वॉज अ रिस्क ऑफ कैरिंग कैश, कि इतना सारा कैश लेके जाना घर से टू द बैंक. सो देयर वॉज अ रिस्क. बट नाउ no need to carry cash. With the help of online facility, with the help of e-banking facility, automatically you can transfer the amount from one bank to another bank account. Yesterday also we have discussed about RTGS NEFT. With the help of that also you can do the fund transfer from one account to another account. Yes, and this with the help of e-banking also. E-banking, we have heard RTGS NEFT, we can say सबसे most popular method है. ओके, NEFT करना, RTGS करना. So this is what transferring the fund without, there is no problem, there is no issue of carrying cash, there is no risk of carrying cash. ओके, तो ये भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके आता है. ओके. Then next is अनलिमिटेड access to the bank increases customer satisfaction. अगर आपको कभी भी नीड है आपको चेक करना कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, या कहाँ पे डिडक्ट हुआ है, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, एंड सो ऑन. सो इट इज़ अ अनलिमिटेड एसेस. अनलिमिटेड एसेस मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज़, वेन एवर यू वॉन्ट टू सी एनी ट्रांजेक्शन, आपके पास पासवर्ड होगा, आपके पास अपनी ID होगी, आप उसको ID पासवर्ड को यूज़ कीजिए. एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू सी एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, अनलिमिटेड मीन्स कितनी भी देर तक आप ई बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो अनलिमिटेड इसमें टाइमिंग है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं. सो इससे क्या होगा, इससे एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ जाता है दैट वेन एवर द कस्टमर वॉन्ट टू सी हिज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड, वेन एवर द कंज्यूमर वॉन्ट टू चेक एनी थिंग, ही कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस ई बैंकिंग फैसिलिटी. सो दीज आर द सेवरल एडवांटेजेस फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट 24/7 उसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. सेकेंडली, वो ट्रांजेक्शन्स कहीं से भी कर सकता है, अपने रेसिडेंस से, ऑफिस से, एंड इवन वाइल ट्रैवलिंग. देन थर्ड, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आता है बिकॉज आपके पास हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा. Then fourth, it brings a sense of security because there is no risk of carrying a cash to the bank. Then fifth is unlimited access. Whenever you want to use, you can use this unlimited. Up to what time you can use this e-banking facility. So unlimited access. Then next is e-banking offers the following benefits to bank. Now from the viewpoint of bank, how it is useful for the bank. First is the bank gains a competitive advantage. See, nowadays the bank, those who are providing this e-banking facilities, जो बैंक ज़्यादा इस तरीके की ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, nowadays customers are moving towards that bank. तो ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है बैंक को दैट द बैंक, those who are not giving proper online facilities to the customers, दिस कस्टमर्स आर स्विचिंग फ्रॉम देयर. कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, उनकी उस बैंक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़, ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है और ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहा है. गुड फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग. ओके, सो दिस इज़ व्हाट, इससे एक बैंक को एक ये भी बेनिफिट हुआ कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला उनको. द बेटर फैसिलिटी दे विल गिव, द बेटर दे विल बी
good in the market, the better their demand will be. Okay, their demand of such banks increases. Then second one is network of the bank is not limited to the number of branches, rather it expand far and wide. Network, see, so many people at one time, so many customers can access to the internet banking. बहुत सारे लोग वन टाइम पर ही अपना काम कर सकते हैं विद ऑनलाइन. यस, एंड सेकेंडली ऐसा नहीं है कि इफ़ सपोज समवन इज़ देयर इन दिल्ली तो सिर्फ वो दिल्ली के ही ब्रांचेस का काम कर सकता है अपने घर बैठ के. नो, ही कैन डू एनी ट्रांजेक्शन. अगर उसका बैंक महाराष्ट्र में था, अगर उसका बैंक मुंबई में था एंड ही इज़ नाउ इन दिल्ली, सो फ्रॉम देयर ऑल्सो ही कैन डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. कोई नेटवर्क इशू नहीं है, देयर इज़ नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी कैसा भी ट्रांजेक्शन यू कैन डू. सो दिस इज़ वॉट कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत वाइड है ये. एंड इट कैन एक्सपैंड फार, बहुत दूर से बहुत वाइड है, फ्रॉम एनी वेयर यू कैन डू एनी ट्रांजेक्शन. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज टू द बैंक. ओके, कि जो नेटवर्क जो है बैंक का वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही ब्रांचेस में है, ये सभी ब्रांचेस के लिए है, सभी बैंक के लिए है. अगर एक बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी सारी ब्रांचेस को इससे फैसिलिटी मिलेगी. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज फॉर द बैंक एज वेल. कस्टमर के लिए तो है ही, बैंक के लिए भी एक बेनिफिट है. Then third, centralized database reduces load on branches. See, nowadays when people are doing transaction themselves, when they are doing online internet e-banking, सो व्हेन दे आर डूइंग दिस इट रिड्यूसेस लोड ऑन ब्रांचेस. अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्रांच में जा रहा है, ब्रांच मीन्स बैंक में जा रहा है एंड वहाँ पे क्राउड है ज़्यादा, ऐसा नहीं है. बिकॉज नाउ ई बैंकिंग की वजह से नाउ मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर डूइंग transactions while sitting at home. They are doing transactions from their home or by themselves they are doing. yes, so it reduces load on branches. अब branches में वही लोग जाते हैं, बैंक में वही लोग जाते हैं जिनको जो चीज़ ई बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है, या जिनको जेन्युइनली कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं विच इज़ नॉट, विच दे कैन नॉट डू देमसेल्फ. ओके, so therefore it, how it is useful to the bank, first of all it help them to gain over a competitive advantage. then secondly जो network है वो काफ़ी wide है, तो उससे बैंक को भी फैसिलिटी है. ये कुछ कुछ ब्रांचेस में नहीं है, इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन ऑल द ब्रांचेस. देन थर्ड वन, इस तरीके की ऑनलाइन फैसिलिटी से जो ब्रांचेस पे लोड था वो काफ़ी कम हो गया है. Then there are several disadvantages of e-banking. First one is the bank and its client have to invest money in e-banking technology. E-banking technology, obviously when it started you have to invest the money in this. आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास पीसी या मोबाइल होना चाहिए. Nowadays बैंक में भी क्या है, विदाउट कंप्यूटर, विदाउट दिस इंटरनेट यू कैन नॉट एक्सेस. बैंक में बिना इंटरनेट के, बिना कंप्यूटर के वर्क पॉसिबल ही नहीं है. सो ऑब्वियसली जब से ये ई बैंकिंग आया है, बैंक को भी और क्लाइंट को भी उसमें मनी इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ गया है. अब पहले से इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा है बैंक में. ओके, बिकॉज ऑफ दिस ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी. सो दिस वी कैन से इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, इट क्रिएट अ कॉस्ट, है ना. सो देयर फॉर इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज. देन सेकेंडली ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी इज़ नीडेड फॉर बोथ. अगेन दिस वी कैन से इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. स्टार्टिंग में जब क्लाइंट इन चीज़ों के बारे में समझता है तो उसको भी ट्रेनिंग की नीडेड है. एंड बैंक स्टाफ ऑब्वियसली जब उनको बैंक स्टाफ को आएगा तभी वो क्लाइंट को समझा सकते हैं हाउ टू यूज़ ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी. यस, सो देयर फॉर इट इज़ ट्रेनिंग इज़ मस्ट फॉर बोथ बैंक स्टाफ एज वेल एज फॉर द क्लाइंट. सो अगेन इसमें भी मनी इन्वेस्ट होता है एज वेल एज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. Then third, clients may not be able to transact due to defect or virus in technology. कुछ clients ऐसे हैं जो इस तरीके से ट्रांजेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज कुछ डिफेक्ट होता है, मे बी इन देयर पीसीज, कंप्यूटर, या वायरस आ गया तो कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. तो कभी कभी जो ट्रांजेक्शन होता है वो बीच में रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. सो समटाइम्स दे मे नॉट बी एबल टू do online transaction because of the network problem, because of the virus or any kind of defect.
Then fourth one is any oversight or error on the part of bank or client can be very harmful. For example, rupees 5 lakh might be transferred because of error in mentioning zero. So see, when we are डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सपोज अ क्लाइंट, कोई क्लाइंट है, उसको 1 लाख रुपीज़ ट्रांजेक्ट करने थे, 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करने थे अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, उसने 1 लाख की जगह 10 लाख कर दिए, 10 एक्स्ट्रा लगा दी बाय मिस्टेक। ओके, व्हेन वी आर डूइंग ऑनलाइन हम करते हैं, सो द दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन हैपन, तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स कैन हैपन। तो नाउ अब एक बार वो जब आप ट्रांजेक्शन कर देते हो, इट इज़ फाइनल, इट इज़ इरिवोकेबल, इट इज़ इरिवर्सिबल, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। यस, सो इस तरीके की प्रॉब्लम होने के, इस तरीके की एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन ई बैंकिंग। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दीज काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। देयरफॉर इट इज़ रिटन, कोई ओवरसाइट हो गया, आप देखना भूल गए, एरर हो गया, मिस्टेक हो गया ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक। ये मिस्टेक बैंक से भी हो सकती है, क्लाइंट से भी हो सकती है, बट दिस मिस्टेक कैन बी वेरी हार्मफुल। सपोज 5 लाख रुपीज़ आपने ट्रांसफ़र कर दिए बिकॉज ऑफ द एरर इन मैंशनिंग ज़ीरो, करने थे 50,000, कर दिए 5 लाख रुपीज़ बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा ज़ीरो। So therefore this problem also arises so many times. So these are the several limitations. So we have discussed about the e-banking, then features of e-banking, advantages to customers, advantages to bank, and several disadvantages. So I hope you all understood. Thank you.